میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس وقت زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آئے گا جب گھر کے کام مجھے کرنا پڑیں گے۔ میں جو اپنی زندگی عیش و آرام سے گزار رہی تھی، آج ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہو گئی کہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں اپنے دل کی غیر ہوتی حالت کو سنبھالتے اپنے قدم تیزی سے بڑھا رہی تھی، کیونکہ مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، اور پھر بار بار آنکھوں میں آنے والے آنسو میرا حوصلہ کمزور کر رہے تھے۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ اس وقت میں گاؤں سے باہر بنے ہوئے ایک حویلی نما محل کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کافی قدیم حویلی تھی اور یہاں پر ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا تھا۔ مجھے انہی کے گھر کام کرنا تھا۔ یہ کام میں خوشی سے نہیں کر رہی تھی، حالات کی مجبوری اور تنگ دستی کی وجہ سے یہ کام کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اسی لیے ابھی مجھے خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، زندگی کس موڑ پر لے آئے گی اور آگے کیا کرنا ہوگا۔ میں جیسے ہی محل میں پہنچی تو ایک عجیب سی پراسرار کیفیت نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ محل کے اندر ایک سناٹے اور خاموشی کا راج تھا جس میں خوفناکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چوکنے انداز میں ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں مجھے کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ میں حویلی کی دہلیز پر ہی کھڑی رہ گئی۔ مجھے ایک بارعب آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ یہ حویلی میرے وجود کے پار ہو گئی۔ میں گھبرا گئی اور ہاتھوں میں پسینہ آ گیا، لیکن پھر بھی اپنے روزگار کی خاطر مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ نہ جانے یہ لوگ کیسے تھے، کس طرح کے تھے، ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوتا۔ ابھی تو میں آئی ہی تھی، اسی لیے ابھی سے مجھے گھبرانا نہیں تھا۔ خود کو ہمت دیتے ہوئے میں اندر آئی تو سامنے ہی تخت پوش پر ایک سفید لباس میں بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی عمر اور جسامت کے برعکس اس کی آواز بہت بھاری اور بارعب تھی۔ ان کے چہرے پر بڑی شائستگی تھی۔ گورا سفید رنگ اور سفید بال ان کی شخصیت کو الگ ہی بنا رہے تھے۔ میں ایک دم پہلی نظر میں ہی ان سے شدید متاثر ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے پر سب سے زیادہ دل نشین اور خوبصورت ان کی آنکھیں تھیں، جن میں سے الگ سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تبھی میں آگے بڑھی اور بے اختیار انہیں سلام پیش کیا، جس کا جواب انہوں نے آہستہ سے سر ہلا کر دیا اور کہنے لگی، آ جاؤ سارا، میں جانتی ہوں کہ تم کام کے لیے آئی ہو، گھبراؤ نہیں۔ یہ محل بہت بڑا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر ایسے سناٹے راج کرتے ہیں۔ تم ڈرو نہیں، بالکل محفوظ ہو۔ ان خاتون کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میرا دل ایک دم پرسکون ہو چکا تھا، اور تبھی میں ان کے قریب ہی جا کر فرش پر بیٹھنے لگی۔ مجھے ایک دم انہوں نے ڈپٹ دیا اور کہنے لگی، ارے ارے نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ یہ سامنے صوفہ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھو اور مجھے بتاؤ تم کچھ کھاؤ گی؟ ان خاتون کی بات سن کر میں بے حد حیران ہو گئی۔ بھلا اپنے ملازموں کو کھانے کے لیے کون پوچھتا ہے؟ لیکن ان کا خاندانی وقار تھا جس کی بدولت وہ میری آؤ بگت کرنے کا سوچ رہی تھی۔ تبھی میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں نہیں ماں جی، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا تو وہ ایک دم بولی، ارے ماں جی، اماں جی اور اماں مجھے مت کہنا، مجھے سب اماں بھی کہتے ہیں، تم بھی اماں بھی ہی کہا کرو گی۔ انہوں نے تو مجھے فوراً ڈپٹ دیا تو میں نے فوراً سعادت مندی سے اپنا سر ہلا دیا۔ تبھی وہ کہنے لگے، ایسا کرو، اپنے لیے اور میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، میں دیکھو تمہارے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ اماں ابی کی بات سن کر میں فوراً باورچی خانے میں چلی آئی۔ وہاں پر داخل ہوتے ہی میں نے چند گہرے سانس بھرے۔ سچ تو یہ تھا کہ اماں ابی کی شخصیت کے روپ میں آ کر میں گھبرا رہی تھی اور بار بار کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن اب کچن میں آ کر مجھے ذرا سکون کا سانس میسر آیا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا۔ چند منٹوں میں ہی چائے بنا کر جب میں لے کر باہر آئی تو اماں بی کے پاس اس وقت کوئی اور بھی کھڑا تھا۔ میں ایک دم ٹھٹک سی گئی۔ اماں بی نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا اور چائے کا کپ تھام لیا۔ کہنے لگی، سارا، ان سے ملو، یہ میری بڑی بہو ہیں، یہیں پر رہتی ہیں، اوپری منزل پر اس کا کمرہ ہے۔ اماں بی نے تعارف کروایا تو میں ان کی بہو کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ ان کی بہو بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک الگ سی روشنی دکھائی دے رہی تھی، نیلی گہری آنکھیں جو میں نے بہت کم کسی کی دیکھی تھی۔ میں اماں بی کی بہو کے حسن کے رعب میں بھی آ چکی تھی۔
तभी अम्मा बी ने अपनी बहू को मुखातिब किया, सुनो नूरीन, अब तुम जाकर ऐसा करो, बच्ची को देख लो, मैं तब तक सारा को सारा काम समझा देती हूँ। लेकिन ख्याल रहे मुझे बच्ची के रोने की आवाज़ ना आए, उसकी आवाज़ मुझे बेचैन कर देती है, मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। अम्मा बी ने अपनी बहू को नसीहत की तो वो सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई, जबकि मैं अम्मा बी की हिदायत सुनते हुए बगौर उनकी बातों की तरफ ध्यान दे रही थी। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल उस बच्ची पर अटक कर रह गया और 5 साल पीछे चला गया। मेरा नाम सारा है और मेरी उम्र 21 बरस है। मैं एक खुशहाल और मुतमईन शादीशुदा औरत थी। मेरे घर में खुशियाँ रक्स करती थी। मेरा शोहर मुझ पर जान छिड़कता था। मैं बेहद खूबसूरत थी, अपने शोहर की लाडली थी, क्योंकि मुझसे शादी के बाद मेरे शोहर का कारोबार खूब चमक उठा। उनके कारोबार में इतनी बरकत पड़ गई थी कि वो जो पहले जिस काटन फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे, वक्त आने पर उन्होंने उसे ही खरीद लिया था। यूँ वो एक फैक्ट्री के मालिक बन बैठे थे। हमारे घराने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे शोहर के 2 भाई थे जिस पर वो जान छिड़कते थे। उनके मुंह से निकलने वाली हर फरमाइश वो पूरी करते। मैं भी अपने शोहर के साथ मिलकर ऐसा ही करती। मेरे शोहर अक्सर मुझे कहते, सारा, मेरे छोटे भाई मेरे भाई नहीं है बल्कि मेरी औलाद की तरह हैं, क्योंकि मेरे बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। अम्मा ने जब दूसरी शादी की तो मैं बेहद डरा सहमा था। मुझे हमेशा इस बात का डर लगता था कि न जाने मेरा सौतेला बाप मुझसे क्या सलूक करेगा। लेकिन तुम यकीन करो सारा, उसने हमेशा मेरे साथ मोहब्बत भरा रवैया रखा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। उसने हमेशा मुझे एक औलाद की तरह ही समझा। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उसे बाप समझना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ने यक के बाद दिगरे मेरे 2 भाई दिए तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया। हमेशा अपने भाइयों पर जान छिड़कता था। मैंने सोच लिया था कि मुझे जो मोहब्बत अपने सौतेले बाप की तरफ से मिली है वो मैं अपने भाइयों में मुंतकिल ज़रूर करूँगा। और देखो आज मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हूँ कि मेरे दोनों भाई मुझ पर जान छिड़कते हैं। अपने शौहर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती और उन्हें कहती, यकीनन ऐसा ही है, वो वाकई आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। कुछ अम्मा भी हमेशा उन्हें आपकी कुर्बानियाँ याद दिलाती रहती हैं, क्योंकि जिस तरह आपके सौतेले वालिद का इंतकाल हुआ और फिर अम्मा ने जिस तरह मेहनत और मजदूरी करके आपको परवान चढ़ाया और साथ साथ आपके दोनों भाइयों को भी संभाला, ये बात बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र है। मैंने अपने शौहर को हौसला देते हुए कहा तो वो एकदम माजी की यादों में खो जाते। वो कहते, तुम सच कह रही हो, मैं अम्मा की मेहनत का गवाह हूँ। जिस तरह अम्मा ने मेहनत करके हम तीनों भाइयों को पाला है, ये अम्मा की ही हिम्मत थी। मेरे शौहर अपनी माँ की कुर्बानियों का एतराफ़ करते तो मैं भी आहिस्ता से सर हिला देती। वक्त एक अच्छी यादें समेट कर गुजर रहा था। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। मुझे अब ये कमी बहुत बुरी तरह से महसूस होने लगी। मैं अक्सर अपने शौहर से जिक्र करती और उन्हें कहती, वलीद, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि जल्द हमारी भी औलाद हो जाए, लेकिन जितनी मैं ख्वाहिश करती हूँ उतनी देर हो जाती है। मैं बेसब्री से अपने शौहर से कहती तो वो हंस देते और कहते, अरे इसमें तुम्हारा क्या ज़ोर है, अल्लाह ने जब औलाद से नवाजना हुआ तो वो नवाज देगा, तुम बस उससे दुआ किया करो और खुश रहा करो। वलीद की ये बात सुनकर मैं सर हिला देती, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेहद फिक्रमंद रहने लगी। तभी एक दिन अपनी सास के पास चली आई और उन्हें कहा, अम्मा, मैं किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहती हूँ। वलीद तो मेरी बात तवज्जो से सुनते ही नहीं है। उनका कहना है कि औलाद अपने वक्त पर हो जाएगी, लेकिन आप ये बताएं कि मैं कैसे सब्र करूं? 2 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अब तक एक बार भी उम्मीद नहीं हुई। मैंने मायूसी के आलम में अम्मा से कहा तो वो कहने लगी, अरे बेटी, फिक्र क्यों करती हो? जब मैंने कभी तुम्हें ताना नहीं दिया, तुम्हारे शौहर ने कभी तुमसे तकाजा नहीं किया, तो फिर तुम्हें किस बात की फिक्र है? अल्लाह से दुआ करो, जल्द वो तुम्हें नवाज देगा। अम्मा ने जब मुझसे ये कहा तो मेरे दिल में भी इत्मीनान उतर आया, लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था कि एक बार डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाऊंगी। कहीं ऐसा न हो कि मेरी लापरवाही किसी बड़े नुकसान का पेशे खैमा बन जाए। यही वजह थी कि चंद दिन में ही जब मुझे मौका मिला
तो मैं डिस्पेंसरी में डॉक्टर के पास चली आई। गांव में यूं तो सेहत की सहूलियात नहीं थी, लेकिन फिर भी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर बैठती थी जो जच्चा बच्चा की स्पेशलिस्ट थी। मैं जब उसके पास आई तो उसने भी मेरे मुख्तलिफ टेस्ट करने के लिए यही कहा कि सब ठीक है, आप बस ताकत की दवाइयाँ खाएं और इंशाअल्लाह जल्द अल्लाह आपकी झोली भर देगा। अब मैं मुतमईन सी हो गई और उसकी बताई हुई गोलियां खाने लगी तो पहले महीने ही उम्मीद से हो गई। ये वक्त मेरे लिए बहुत खूबसूरत यादें लेकर आया था। मैं आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। मेरी खुशी को देखकर वलीद भी बेइंतहा खुश थे और कहने लगते, देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अल्लाह नवाज देगा, बस तुम बेसब्री बन रही थी। वलीद के मुंह से ये सुनकर मैं मुस्कुरा देती। आजकल घर में खुशियाँ रक्स कर रही थी। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और अब जिस चीज़ की कमी थी वो भी पूरी होने जा रही थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी खुशियों को बहुत जल्द किसी की नज़र लग जाएगी और ऐसी नज़र लगेगी कि सारी ज़िंदगी मैं उस नज़र के इशारे में बंधी रहूँगी। अगर जो मुझे पहले खबर होती तो शायद मैं अपनी खुशियों की नज़र उतारती रहती और हर वक्त सजदे में पड़ी रहती। मेरा भी 7वां महीना था जब अचानक एक रात फैक्ट्री से वापस आते हुए वलीद की गाड़ी को एक हादसा पेश आ गया। मुकाबिल ने अपना ट्रक वलीद की गाड़ी के ऊपर ही चढ़ा दिया था और नतीजे में वलीद मौके पर ही जाम बहक हो गए। घर में जब यह खबर पहुंची तो जैसे क़यामत सुगरा का मंजर था। मैं तो ये सुनते ही बेहोश हो गई और फिर मुझे नहीं खबर कि वलीद कब घर आए, कब उन्हें नहलाया गया, कब उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। मैं तो आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि मैं जब भी होश में आती तो चिल्लाने लगती और डॉक्टर मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन दे देता। मेरी हालत के पेश नज़र मुझे वलीद का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया, क्योंकि डॉक्टर का ख्याल था कि अगर मैंने वलीद को इस हालत में देखा तो शायद अपने असाब गंवा बैठूं या फिर अपने होश खो बैठूं। इसलिए मेरे बच्चे की सेहत की खातिर मुझे वलीद का आखिरी बार दीदार नहीं करवाया गया। न जाने कितने दिन में उन्हीं दवाइयों के ज़ेरे असर बंद कमरे में पड़ी रही और जब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इस हकीकत को कबूल करना शुरू किया तो मैं हर वक्त रोती रहती और वलीद को याद करके आंसू बहाती। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जब मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी पूरी होने जा रही थी तब वलीद मेरा साथ छोड़ देंगे। अगर मुझे खबर होती तो शायद उस दिन मैं उन्हें फैक्ट्री जाने से ही रोक लेती और हमेशा अपनी नज़रों में बंद करके रख लेती। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका था। वलीद इस दुनिया से जा चुके थे और मुझे अपनी नन्ही सी जान के साथ जीना था। मैं जो पहले ही एक एक दिन गिनकर गुजार रही थी और अपने होने वाले बच्चे का इंतज़ार कर रही थी, अब एक एक लम्हा मुझ पर भारी गुजर रहा था। तभी मेरा 9वां महीना शुरू हो चुका था। अब किसी भी वक्त मुझे अस्पताल जाने की ज़रूरत पेश आ सकती थी। उन्हीं दिनों में अचानक एक रात जब मेरी तबीयत घबरा रही थी तब मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई और सहन में टहलने लगी। लेकिन अचानक ही अपने देवर के पास से गुजरते हुए मुझे एक आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ सुनकर मुझे ठटकने पर मैं मजबूर हो गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा देवर दूसरे देवर से कह रहा था, अरे शुक्र करो किसी को शक नहीं हुआ, किसी को भी ये बात पता नहीं चली कि उस ट्रक ड्राइवर को हमने ख़रीदा था और उसे हमने पैसे देकर अपने भाई को मरवाया है। जबकि दूसरा देवर कहने लगा, अरे पता कैसे चलेगा, हमने काम ही इतना पक्का किया था। लेकिन अब ये सोचो कि उसकी बीवी और बच्चे का क्या करना है। आजकल में बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर उसका क्या करेंगे। जबकि मेरा दूसरा देवर कहने लगा, अरे करना क्या है, वही करेंगे जो अपने भाई के साथ किया है। इस बच्चे को भी मार देंगे और रही उसकी बीवी तो वो वैसे ही सदमे से पागल हो जाएगी, उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। अपने देवर की ये खौफनाक बातें सुनकर बेइख्तियार मैंने मुंह पर हाथ रखा। अभी यूं लग रहा था कि जैसे मैं चीखने लगूंगी और चिल्ला चिल्ला कर आसमान सर पर उठा लूंगी। मैंने बमुश्किल वहाँ से अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने कमरे में आ गई। बेसाख्ता मेरा सांस अटकने लगा था। यूं लग रहा था कि जैसे अभी मैं मर जाऊंगी। खुद को हौसला देती हुई एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी। यूं लग रहा था कि आज मेरे गम पर आसमान भी रोने लगेगा। मेरा सीना शक हो गया था और उस वक्त आंसू बहा बहा कर मैं जैसे अंदर से खाली हो गई थी।
समझ नहीं आ रही थी कि जिन रिश्तों को हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी समझा, सबसे पहले उन रिश्तों को रखा, आज वही रिश्ते इतना बड़ा धोखा देने में कामयाब हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वलीद के दोनों भाई इतने गिरे हुए निकलेंगे कि खुद ही अपने भाई का कत्ल कर देंगे। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। लेकिन अब मुझे इस बात की फ़िक्र थी कि मैं अपनी औलाद की फ़िक्र कैसे करूँगी। मुझे खुद से ज़्यादा अपने होने वाले बच्चे की फ़िक्र थी। तभी अगले दिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे हस्पताल ले जाया गया। वहीं पर शदीद दर्द की अजियत से गुजरकर मैंने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन इस दौरान भी मुझे सिर्फ इसी बात की फ़िक्र थी कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत कैसे करूं। इसीलिए मैंने हिम्मत करते हुए अपनी बच्ची को उठाया और चुपचाप अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी। उस वक्त कमज़ोरी और नकाहत के बायस मुझसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। बार बार चक्कर आते और यूँ लगता कि जैसे अभी गिर जाऊँगी। लेकिन हिम्मत सिर्फ इस बात की थी कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है और उन जालिमों से कहीं दूर लेकर जाना है। तभी अचानक मुझे एक जगह पर छोटा सा झूला रखा नज़र आया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, अगर आपका बच्चा आपके ऊपर बोझ है तो इस झूले में डाल दें। मैंने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा और अपनी बेटी को देखा। फिर अल्लाह से दिल ही दिल में उसकी सलामती की दुआ मांगते हुए मैंने उसे झूले में डाल दिया और फ़ौरन वापस पलट आई। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं पलट कर देखूंगी तो फिर उस बच्ची के बगैर रह नहीं पाऊंगी और उसे अपने साथ दोबारा ले जाऊंगी और शायद इस तरह उसकी जान को ख़तरा हो जाता। मैं चुपचाप अस्पताल वापस आ चुकी थी और वहीं पर बिस्तर पर आकर लेट गई, जैसे मुझे किसी बात की खबर ही नहीं। मेरे शोहर के दोनों भाई जब अंदर आए और उन्होंने उस बच्ची के बारे में पूछा तो एक लम्हे के लिए मेरा रंग जर्द पड़ गया। तभी मैंने कहा कि बच्ची शायद नर्सरी में है, मुझे मालूम नहीं, मैंने तो अब तक नहीं देखी। मैंने झूठ बोल दिया। वो सारे अस्पताल में बच्ची बच्ची करते रहे, उसे ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची कहीं पर होती तो कुछ पता चलता। मैंने भी परेशान होने का दिखावा किया, क्योंकि मैं उनके सामने इजहार नहीं कर सकती थी कि मैं उनकी हकीकत जानती हूँ। यही वजह थी कि मैं चुपचाप घर वापस लौट कर आ गई। मेरी सास ने बच्ची के गुम होने का बहुत सदमा लिया। वो तो जैसे चुप सी होकर रह गई थी, जबकि मैं भी खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। तभी बच्ची की पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया। उसका कहना था कि अब जबकि भाई भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आपकी बेटी भी नहीं मिल रही, वरना उसी की खातिर हम आपको इस घर में जगह दे देते, क्योंकि वो हमारे भाई का खून थी। अब चूँकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो इसलिए आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं, आप यहाँ से चली जाएं। अपने देवर की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मैंने उससे कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये मेरे शोहर का घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जबकि मेरी बात सुनकर वो कहका लगाकर हंसा और कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, आपके शोहर का इंतकाल हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहता, और जिस दुनिया में वो रहता है आप भी वहीं चली जाएं। अपने देवर की ये सफाकी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली आई। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की और ये पता लगाने की कोशिश की कि वो झूला किसने रखा था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर किसी को भी मालूम नहीं था कि वहाँ पर कोई झूला भी मौजूद था, और अगर मौजूद था तो किसने रखा था, और अगर उसमें कोई बच्चा डाल कर जाता तो वो बच्चा कहाँ जाता। ये बात मेरे लिए एक मुअम्मा बन गई थी। मैं अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई नामो निशान मुझे कहीं नहीं मिला। अब तो जैसे मैंने सब्र कर लिया था। मैं गांव में ही एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगी थी, क्योंकि मेरे मैके में तो कोई था ही नहीं। मेरा भाई मेरी शादी के बाद बैरून मुल्क चला गया था, उसके बाद वो अब तक वापस नहीं लौटा था। मैं उसके पास नहीं जा सकती थी और ना ही उसके साथ कोई राब्ता था, और सच कहूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी की खुशियों में गुम होकर कभी उससे राब्ते की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब मुझे बुरी तरह से उसकी कमी महसूस हो रही थी और मैं उससे राब्ता करना चाहती थी, लेकिन मुझे राब्ते का कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और मेरे गांव में ही छोटे मोटे काम करके, मेहनत मजदूरियां करके मैं पेट पाल रही थी।
इस बात को गुजरे हुए 5 बरस हो चुके थे और आज तक मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ खबर नहीं मिली थी। वो कैसी थी, कहाँ थी, जिंदा थी या मर गई थी, कहीं उसे कोई जानवर तो नहीं खा गया। तरह तरह के वसवसे मुझे सताते, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिलती। मैं सिवाय सब्र करने के और कुछ कर भी नहीं सकती थी। आज भी उस हवेली में काम की तलाश के लिए ही आई थी। दरअसल मुझे किसी ने बताया था कि उन्हें एक घरेलू मुलाजमा की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी किस्मत आजमाऊं, क्योंकि आजकल भी मुझे काम की ज़रूरत थी। और यहाँ आकर अम्मा भी जैसी मेहरबान शख्सियत से मुलाकात हुई तो मुझे यूँ लगा जैसे मेरे गम भी धुल जाएंगे। इसीलिए मैंने उस काम को करने की हामी भर ली और अम्मा बी के साथ काम करने लगी। तभी अम्मा बी ने मुझे सोचू में गुम देखा तो कहने लगी, अरे सारा, ऐसा करो, ऊपर बड़ी बहू के कमरे में उनकी बेटी का दूध दे आओ। वो मुझे कह कर गई थी, लेकिन मैं भूल गई। अम्मा बी ने याद करते हुए मुझे बोला तो मैंने सर हिलाते हुए फ़ौरन बावर्ची खाने का रुख किया। दूध को हल्का सा नीम गर्म करके ऊपर ले आई। ऊपर का हिस्सा भी उसी तरह पुरस्रार और खौफनाक महसूस हो रहा था जैसे नीचे वाले हिस्से में पुरस्रारियत महसूस हो रही थी। मैं एक लम्हे के लिए कांप सी गई। खौफ की एक शदीद लहर मेरे वजूद में दौड़ने लगी, लेकिन फिर खुद पर काबू पाकर अम्मा बी के बताए हुए कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया। नूरीन बाजी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अंदर आने का कहा। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो एकदम मेरी निगाह उस बच्ची की तरफ उठी। उस बच्ची को देखकर मेरा दिल एकदम उसकी तरफ खींचा। दिल चाहा कि फ़ौरन आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लूं। मैं दरवाजे में ही खड़ी यकटक अंदाज में उस बच्ची की तरफ देखे जा रही थी। वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी और कहीं न कहीं वो मुझे याद दिला रही थी। मैं बगौर उस बच्ची को देखने में मसरूफ़ थी। तभी मुझे नूरीन बाजी की आवाज़ सुनाई दी, अरे सारा, दूध अंदर ले आओ, ठंडा हो जाएगा। मैं हड़बड़ा कर एकदम जैसे होश में आई और फ़ौरन दूध का गिलास नूरीन बाजी को थमा दिया, जिसे उन्होंने बच्ची को पिलाना शुरू कर दिया। वो बच्ची खामोशी से दूध पीकर आराम से बिस्तर पर लेट गई, जबकि नूरीन बाजी कहने लगी, ज़ारा, अब ज़ैनब के सोने का वक्त है, ये थोड़ी देर सोएगी। तुम ऐसा करो, ये गिलास ले जाओ और अम्मा से पूछ कर खाना पकाने की तैयारी करो। मैं अभी थोड़ी देर में ही नीचे आती हूँ। बाजी ने मुझे कहा तो मैंने सर हिला दिया, लेकिन न जाने क्या बात थी, मेरा उस बच्ची से दूर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। ज़ैनब नाम ही इतना खूबसूरत है। मैंने आहिस्ता से अपने लबों में उसका नाम दोहराया और उसकी तरफ देखते हुए नीचे उतर आई। मेरी गुमसुम सी कैफियत को अम्मा बी ने भी महसूस कर लिया और पूछने लगी, क्या बात है सारा, तुम बहुत गुमसुम सी हो, कोई परेशानी है क्या? और मेरा ज़ब्त यहीं तक था, एकदम मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अम्मा बी को अपने साथ गुजरे हुए जुल्म के बारे में बता दिया और अपनी बच्ची के बारे में भी बता दिया कि किस तरह मैंने अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़ दिया था और अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरी बेटी ज़िंदा है या मर गई है। आज ज़ैनब को देखा तो नए सिरे से मुझे अपनी बच्ची की याद सताने लगी, क्योंकि अगर मेरी बच्ची मेरे पास होती तो वो भी 5 बरस की होती और मैं उसकी परवरिश अच्छे अंदाज में कर रही होती। मैंने अम्मा बी को तो ये सब कुछ बताया तो अम्मा बी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अरे सारा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम तो इतनी आजमाइशों से गुजर कर यहाँ पहुँची हो, लेकिन शायद तेरी आजमाइशें ख़त्म होने का वक्त आ रहा है, इसलिए तो यहाँ आ गई है। अम्मा बी ने बड़े पुरस्कार अंदाज में जब ये कहा तो मैं चौंक उठी और बोली, वो कैसे? अम्मा बी, आप कैसे ये कह सकती हैं कि मेरी आजमाइशें ख़त्म होने वाली हैं? मैंने पूछा तो अम्मा बी ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराया और बोली, सारा, अगर मैं तुझे कहूँ कि मुझे मालूम है कि तेरी बच्ची कहाँ है तो क्या तू मेरी बात का यकीन कर लेगी? अम्मा बी के कहने पर मेरा दिल एकदम धड़क उठा। मैं फ़ौरन बोली, बिल्कुल अम्मा जी, मैं यकीन कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची चाहिए और फिर उसका पता कहीं से भी मिले, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने बेताबी से कहा तो वो कहने लगी, सारा, क्या तुम जानती हो कि ज़ैनब कौन है? अम्मा बी ने एकदम मुझसे पूछा तो मेरा दिल जैसे डूब कर उभरा। मैंने आहिस्ता से ना में सर हिला दिया तो अम्मा बी कहने लगी, ज़ैनब तेरी बेटी है, ये वही बच्ची है जो उस रात तुमने झूले में डाली थी, और वो झूला जिन्नाती झूला है और वो जिन्नात ने वहाँ पर रखा हुआ था।
वहाँ से ही हमने इस बच्ची को लिया था। दरअसल मेरी बड़ी बहू नूरीन के यहाँ भी कितने अरसे से कोई औलाद नहीं थी और वो औलाद ना होने की वजह से शदीद नफसियाती दबाव का शिकार थी। बार बार चिल्लाने लगती, चीखने लगती और उसे दौरे पड़ने लग गए थे। तभी हमने सोचा कि किसी की बच्ची को गोद में ले लेंगे। और उस दिन जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो झूले पर मेरी नज़र पड़ी। बच्ची देखकर मैं बेख्तियार रुक गई। मुझे यूँ लगा कि कुदरत की तरफ से ये बच्ची मेरे लिए तोहफ़ा है। फिर मैं कुछ सोचकर उस बच्ची को लेकर घर आ गई और अपनी बहू की झूली में डाल दिया, जिसे उसने बेहद मोहब्बत और तवज्जो से पाला कि आज उसकी जान बसती है उसमें। ज़ैनब तुम्हारी बेटी है। अम्मा बी के मुंह से ये बात सुनकर मैं बेहद हैरान थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बरसों के बाद मुझे अपनी बच्ची की खैर खबर मिल चुकी है, और फिर सबसे बढ़कर वो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन अम्मा बी की एक बात, जिन्नाती झूला और उसका ख़ानदान, ये सब मेरे लिए हज़म करना मुश्किल हो रहा था। अम्मा बी आप क्या कह रही हैं? जिन्नाती झूला और जिन्नात, आखिर ये सब क्या है? मैंने उलझे हुए अंदाज में अम्मा बी से पूछा तो वो कहने लगी, ये सब बिल्कुल सच है कि वो जिन्नाती झूला है जो जिन्नात ने वहाँ रखा है ताकि अगर कोई अपनी औलाद को नहीं रखना चाहता तो इस झूले में डाल दे। जिन्नात खुद उसकी परवरिश कर लेंगे। और रही बात हमारी, तो हम भी जिन्नात के ख़ानदान से हैं। मैं खुद जिनज़ादी हूँ, नूरीन भी जिनज़ादी है। ये महल हमारे बाप दादा का है और हमने यहाँ आकर इसे आबाद किया कि मेरे बेटे को अपनी ताकतें बढ़ाना थी और इसे अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए इंसानी दुनिया में आकर रहना था कुछ देर। यही वजह थी कि हम यहाँ चले आए, क्योंकि ज़ैनब जब से उसकी ज़िंदगी में आई है उसकी ताकतें कुछ कम हो गई हैं। अब ज़ैनब की बदौलत ही उसकी ताकतें बढ़ने वाली थी। अम्मा बी ने मुझे ये सब बताया तो जिसे सुनकर मेरे तासुरात अजीब से हो गए। लेकिन अम्मा बी मैं अब तक समझ नहीं पाई कि आखिर ज़ैनब के साथ इस तरह की जिन्नाती ताकतों का क्या ताल्लुक़ है। अम्मा बी ने मेरी बात को गौर से सुना और फिर कहने लगी, दरअसल ज़ैनब एक इंसानी बच्ची है। जब हम किसी इंसानी बच्ची को गोद में लेते हैं तो हमें अपनी बहुत सारी ताकतें खोना पड़ती हैं, लेकिन एक मखसूस वक्त के बाद वो ताकतें आहिस्ता आहिस्ता वापस मिल जाती हैं। लेकिन उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि ये अमल करके अपनी ताकतों को वापस लाना होता है। अम्मा बी ने तफसीलन बताया तो मैंने सर हिला दिया। लेकिन मुझे अब इस बात की बेचैनी थी कि मैं किसी तरीके से ज़ैनब से मिल लूँ, उससे सीने से लगा लूँ। तभी अम्मा बी की तरफ मुल्तजी नज़रों से देखने लगी। लेकिन अम्मा बी कहने लगी, अब तुम मुझसे तवक्को मत रखना। मैं तुम्हें कभी ज़ैनब से मिलने नहीं दे सकती। बस इतना ही है कि मैंने तुम्हें उसकी सच्चाई बता दी है और तुम्हारी ममता की तस्कीन के लिए तुम्हें सारी हकीकत से आगाह कर दिया। लेकिन अब इससे ज़्यादा की तवक्को मत रखना। अगर तुम्हें अपनी बेटी अजीज़ होती या उसे खुद पालना चाहती तो उसे कभी उस झूले में न डालती। अब वो मेरी पोती है, इस घर की बेटी है। अब तुम्हारा उसके ऊपर कोई हक नहीं। अम्मा बी ने एकदम रखाई से मुझे कह दिया तो बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी इस दोराहे पर ले आएगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं उस घर की मुलाजमा बनकर रह गई, क्योंकि कम से कम मुझे दिन में एक बार अपनी बेटी की शक्ल तो दिखाई देती। उसे देखकर जैसे मैं नए सिरे से जी उठती। लेकिन मैं अपनी बच्ची को उस तरह से प्यार नहीं कर सकती थी जैसे मैं अपनी बच्ची को करना चाहती थी। उसे देखकर अब मेरी ममता बेचैन हुए जा रही थी। दिल चाह रहा था कि उसे अपने पास रख लूं। मैं अम्मा बी की तरफ मुंतज़िर नज़रों से देखती तो वो मुझे साफ मना करती और रखाई से कह देती कि मैं तुम्हारा यहाँ पर आना बंद कर दूंगी। मैं अम्मा बी की इस बात से डर जाती और यही कहती कि नहीं अम्मा बी, मेरा यहाँ आना ना बंद करना, मैं यहीं पर रहूँगी। अब दोबारा अपनी ज़ुबान पर ये बात नहीं लेकर आऊँगी। लेकिन न जाने क्या बात थी, जब तक मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा था तब तक तो मैं ये वक्त गुजार रही थी। लेकिन अब जब उसे देखा, उस वक्त से लेकर मेरी ममता को सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था और अब मैं आजकल उसे बहाने से अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी। तभी एक दिन अम्मा का बेटा ही चला आया जो कि ज़ैनब का वालिद था। अम्मा भी उसे देखकर खिल उठी और कहने लगी, शाह सुल्तान तुम कैसे हो? आज कितने अरसे बाद अपना चेहरा दिखाया। अदब से सलाम करके वो बैठ गया। वो कहने लगा, अम्मा भी, दरअसल बात यह है कि
आप जानती तो हैं कि मुझे अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए कुछ खास अमल करने की ज़रूरत है। जब तक मैं ये अमल नहीं करूँगा तब तक मेरी ताकतें नहीं बढ़ सकेंगी। यही वजह है कि मैं अपने उसी अमल में मसरूफ़ था। बहुत जल्द मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। अम्मा भी ये सुनकर खुश हो गई और कहने लगी, शाह सुल्तान, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम्हें जिन्नात का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। अम्मा भी के लहजे में एक तफाखुर बोल रहा था, जबकि वो भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बिल्कुल ऐसा ही है अम्मा भी, आपकी दुआएं साथ होनी चाहिए। बस तो ठीक है, फिर तुम्हारा अमल जब मुकम्मल हो जाए तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। अम्मा भी ने संजीदगी से अपने बेटे से कहा। अम्मा भी की बात सुनकर मेरा दिल एकदम परेशान हो उठा। मुझे इस बात की बेचैनी लग गई कि अम्मा भी ज़ैनब को भी साथ ही लेकर जाएंगी। तभी अम्मा भी का बेटा कहने लगा, आप फिक्र मत करें अम्मा भी, मैं भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता, बस मजबूरी है। और फिर कुछ अरसा अगर हम यहाँ रहकर इस हवेली को आबाद कर लेंगे तो चलो हमारे बाप दादा भी खुश होंगे, हमारे बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर भी कोई घर है। बाकी आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द वापसी का सोचता हूँ। जब तक मेरा अमल मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक तो यहाँ रहना मजबूरी है। शाह सुल्तान ने अपनी माँ से कहा। अम्मा बी ने सर हिला दिया। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी तो बेदहानी में ये सारी बातें सुन चुकी थी, इसलिए मेरा दिल बेचैन हो गया था। तभी अचानक एकदम से ऊपर से चीख की आवाज़ सुनाई दी तो मेरा दिल मज़ीद दहला गया। मैं फ़ौरन बावर्ची खाने से बाहर आई। ये आवाज़ ऊपर से आई थी और शायद नूरीन बाजी की थी। अम्मा भी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, सारा ज़रा ऊपर जाकर देखना क्या मसला है। नूरीन एकदम से क्यों चिल्लाई है, मेरा तो दिल दहल रहा है। मैं फ़ौरन सर हिलाती तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती हुई ऊपर आई तो एक अजीब से सन्नाटे और खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं ठटक कर रुक गई। यूँ लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई मौजूद है। मैंने कॉरिडोर में इधर उधर निगाह दौड़ाई लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। तभी मैंने सर झटकते हुए नूरीन बाजी के कमरे का रुख किया और सीधी वहाँ आ गई। नूरीन बाजी, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चिल्लाई थी? मैंने उनसे पूछा तो वो एकदम परेशानी से बोली और कहने लगी, सारा ये देखो, ज़ैनब को चोट लग गई है। ये एकदम बेड से गिर पड़ी थी और इसके सर पर चोट लगी है। नूरीन बाजी ने फिक्रमंदी से कहा तो मैं भी एकदम परेशानी से ज़ैनब की तरफ बढ़ी। उसे छूकर देखा तो वाकई उसके सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से ज़ैनब रो रही थी। मैंने एकदम उसे अपनी बाहों में भरा और उसे कंधे से लगाकर आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगी। ज़ैनब एकदम पुरसकून हो गई थी और वो मेरे कंधे पर सर रखे पुरसकून अंदाज में अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। मैं भी मुतमईन होकर उसे कमरे में लेकर इधर उधर टहलने लगी। मेरा इरादा था कि ज़ैनब सो जाएगी तो मैं इसे बिस्तर पर लिटाकर फिर नीचे चली जाऊंगी। नूरीन बाजी ने ज़ैनब को जब पुरसकून अंदाज में इस तरह मेरे साथ लगे हुए देखा तो कहने लगी, अरे वाह, ज़ैनब तो मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं सोती, लेकिन अब तुम्हारे साथ कितने आराम से लगी हुई है। नूरीन बाजी ने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। नूरीन बाजी शायद समझ नहीं सकती थी कि मेरा और ज़ैनब का क्या रिश्ता है। उन्हें तो शायद इस बात की खबर ही नहीं थी, ये बात सिर्फ अम्मा ही जानती थी। कुछ देर में ही ज़ैनब पुरसकून होकर सो चुकी थी। मैंने उसे आहिस्ता से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल देकर वापस नीचे चली आई। अम्मा भी नीचे परेशानी से बैठी हुई थी और पूछने लगी, क्या हुआ, नूरीन ऐसे क्यों चिल्लाई थी? मैंने उन्हें मुख्तसर सा सारा वाक़या सुना दिया तो वो गहरी नज़रों से मुझे देखने लगी। फिर कहने लगी, सारा, मैं जानती हूँ कि ममता बहुत बुरी चीज़ है, उसकी तड़प बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। मैं कभी भी ज़ैनब तुम्हें वापस नहीं करूँगी। ज़ैनब के आ जाने से हमारे घर की खुशियाँ मुकम्मल हो गई हैं। हमारे घर में रौनक का एहसास होने लगा और मैं नहीं चाहूँगी कि वो रौनक ख़त्म हो। इसीलिए तुम जब चाहो ज़ैनब से मिल सकती हो, उसके साथ खेल सकती हो, बातें कर सकती हो, लेकिन ये नहीं है कि मैं ज़ैनब को तुम्हारे हवाले कर दूँगी। इस बात को अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो। अम्मा भी ने मुझे सख्ती से समझाते हुए कहा तो बेख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने दिल पर हाथ रखते हुए अम्मा भी को समझाने की कोशिश करती, लेकिन न जाने क्या बात है कि मेरा दिल समझ नहीं पाता।
میں بار بار زینب کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں۔ یہ شاید مامتا ہے یا میری محبت ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن جو بھی ہے میری تڑپ بہت بری ہے۔ جس طرح میں نے پہلے 5 سال گزارے آپ نہیں جانتی، اور جب سے میں یہاں پر آئی ہوں یہ وقت بھی نہیں گزر رہا، ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل سکون میں نہیں ہے۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ میں زینب کو ایک بار سینے سے لگا کر خود کو پرسکون کر لوں، ایک بار میں اسے ماں کی طرح سینے سے لگاؤں اور اپنی بیٹی کی طرح پکاروں، تو شاید میری مامتا کو سکون آ جائے۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد میرے پاس تو کوئی آسرا بھی نہیں تھا، ایک زینب بھی تھی، لیکن اپنے شوہر کے دھوکے باز بھائیوں کی وجہ سے مجھے زینب کو اس جھولے میں ڈالنا پڑا، ورنہ شاید میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن شاید اماں بھی اپنی جگہ مجبور تھی۔ آخر زینب چند گھنٹوں کی تھی جب ان کے پاس آئی تھی، اور اس کے بعد اب وہ 5 برس کی ہے، تو اماں بھی کیسے اسے میرے حوالے کر سکتی تھی، چاہے میں اس کی سگی ماں ہی کیوں نہیں تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں روز حویلی میں کام کرنے کے لیے آتی، رات تک یہیں پر رہتی۔ اس دوران زینب کو بھی سنبھالنے کا موقع ملتا اور اسے دیکھنے کا بھی موقع ملتا۔ میں خود کو قابو میں رکھ کر اسے دیکھ لیتی۔ آہستہ آہستہ کر کے دن گزرتے جا رہے تھے، اور ایک دن شاہ سلطان جب حویلی آئے تو وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ شاہ سلطان نے بڑی خوشی بھرے لہجے میں اماں بی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اماں بی، میں اپنا عمل مکمل کر چکا ہوں، اب میری ساری طاقتیں مجھے واپس مل چکی ہیں، اب آپ واپسی کی تیاری کریں، ہمیں واپس اپنی دنیا میں جانا ہے۔ شاہ سلطان کی یہ بات سن کر میرا تو ایک دم دل دہل گیا، بے اختیار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اماں بھی میرے سرہانے ہی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے سارا، تیرا دل تو بہت تھوڑا سا ہے، آخر تو کیوں اپنے دل پر اتنا صدمہ لے رہی ہے، کیوں اپنی جان کو ہلکان کر رہی ہے؟ اماں بھی نے افسوس سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے کہا۔ میں خاموش ہو گئی اور آنکھ سے 2 آنسو گرے، میرے گریبان میں جذب ہو گئے۔ اماں بھی میرا دکھ جانتی تھی، لیکن ان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ حق بجانب تھی۔ تبھی اماں بھی نے واپسی کی تیاری پکڑ لی تھی۔ وہ دن بہت بھاری گزر رہے تھے۔ آج کل مجھ سے ہر کام خراب ہوئے جا رہا تھا، کسی کام کو کرنے میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ آج میرا اس حویلی میں آخری دن تھا، کیونکہ آج اماں بھی اور زینب ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہے تھے۔ آج کے دن صبح سے ہی میری آنکھیں بھیگی تھی، ایک لمحے کی بھی تسلی نہیں تھی۔ اماں بھی نے ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی اور سب جانے کو تیار تھے۔ میں بے اختیار اماں بھی سے التجا کرنے لگی، اماں بھی، ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، ایک بار سوچ لیں، آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہیں گی تو میری بیٹی مجھے واپس مل جائے گی، لیکن یہ صرف آپ کی چاہت پر ہے۔ آپ ایک بار میری جگہ پر خود کو رکھ کر سوچیں۔ اماں بھی کو میں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی مجھے کہنے لگی، سارا، اس بات کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل، ہماری دنیا میں چل کر رہ لے۔ اس طرح زینب تیری نظروں کے سامنے رہے گی تو اس کی پرورش کے لیے وہیں ہمارے ساتھ محل میں رہے گی۔ اس طرح تو بھی زینب سے دور نہیں ہوگی اور ہم بھی دور نہیں ہوں گے۔ اماں بھی نے میرے سامنے یہ تجویز رکھی تو میں ایک دم حیران رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں بھی ایسا کچھ کہہ دیں گی۔ میرے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھ کر اماں بھی کہنے لگیں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، یا تو ہمارے ساتھ چل یا پھر اس بات کو یہیں دفن کر، بدلے میں تجھے یہ حویلی دیتی ہوں۔ اس حویلی میں عیش و عشرت سے جیسے دل چاہے ویسے رہو، لیکن دوبارہ کبھی تمہارے ہونٹوں پر زینب کا نام نہ آئے۔ اماں بھی نے مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح ایک انسانی دنیا چھوڑ کر جنات کی دنیا میں جا کر رہوں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے زینب کو اپنی نظروں کے سامنے لاتے ہوئے مشکل فیصلہ کیا اور اماں بھی سے کہا کہ ٹھیک ہے اماں بھی، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہاں پر اس دنیا میں میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے، نہ تو میرا کوئی اپنا ہے نہ شاید کوئی ہوگا۔ میری صرف ایک بچی ہے اور اس بچی کی خاطر دنیا چھوڑنے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کی یہ تجویز مجھے منظور ہے، میں نے اماں بھی سے مضبوط لہجے میں کہا۔ اماں بھی مسکرا دی اور کہنے لگی، یہ تو نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، اس طرح تو اپنی بچی کے ساتھ رہے گی، ہمارے دل پر بھی کوئی بھاری بوجھ نہیں بنے گا۔
ورنہ مجھے ہمیشہ یہ پچھتاوا ستاتا رہتا کہ میں نے ایک بچی کو اس کی ماں سے جدا کیا۔ جب تو اس کے ساتھ ہی ہوگی تو مجھے بھی ذہنی سکون رہے گا۔ اماں بھی مسکراتے ہوئے مجھے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگی تو میں بھی مسکرا دی، کیونکہ اب میرے بھی دن بدلنے والے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ زینب کے ساتھ رہ کر میں ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزاروں گی، اور کم سے کم میری زندگی پچھلی زندگی سے تو بہتر ہوگی، جس میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھوٹی موٹی مزدوریاں کرتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اماں بھی کے ساتھ ایک نئی منزل کی طرف چل پڑی۔ وہ نئی منزل مجھے نئے راستے دکھا رہی تھی اور میری آنکھوں میں نئی امیدیں جگا رہی تھی۔ زینب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میرا دل روشن ہو رہا تھا، کیونکہ یہ سب میں نے صرف زینب کے لیے کیا تھا۔ اب وہ میرے پاس تھی۔ میرے شوہر کے دونوں بھائی میرے شوہر کو تو مارنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ مجھے اور زینب کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اپنی حکمت عملی کے تحت میں نے زینب کی وقتی جدائی کو قبول کر لیا تھا اور اللہ کے سپرد کرتے اسے جناتی جھولے میں ڈالا، ورنہ شاید میں ایسا نہ کرتی تو آج زینب میرے ساتھ نہ ہوتی، میں اسے بھی گنوا کر رو رہی ہوتی۔ وقت نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں نے اب اس پر صبر کر لیا، کیونکہ اب مجھے زینب مل چکی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں ہمیشہ اللہ سے گلا کرتی کہ اس نے میرے محبت کرنے والے شوہر کو مجھ سے چھین لیا۔ میرا گھر برباد ہو گیا، میں سڑکوں پر رولنے والی ہو گئی تھی، لیکن اب زینب کے ساتھ اس جناتی محل میں رہتے میں خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب میری زندگی میں کسی دکھ کا سایہ تک نہیں ہوگا۔